Hi Rahul Nair. Hi Sarvapriya. Welcome to another episode of How to Whatever. Our weird discussions. I think this is episode 5. Right? Yes, episode 5. So today we decided to deviate from the regular gyan we give to people and talk about what's happening in the world and how it is so significantly interesting, right? Yes, So it is. we are going to talk about the chip war, right? And who's the author of chip war? Chris Miller. Chris Miller. Okay. So how did you find this book, and how did you first of all decide that you want to read this book? Interesting. Uh, First thing, recently we watched on YouTube videos ki how microchip is playing an important role, how China is attacking Taiwan for the semiconductor industries. So वहाँ से curiosity जागी, and with one of my friend I visited one good library, an informational library. There I saw this book called Chip War by Chris Miller. So I was curious. So I just read through the, you know, back content, and I figured out that that it would be an interesting read. So I ordered it, and I went through some chapters, and it was interesting. Like अभी हम जो देख रहे हैं यूट्यूब पे, it is just 1% of what they are sharing. But if you go through this book, you will get to know about the history, the present, and the future of how these semiconductors will play an important role in an economic, like in countries' economic growth in future. Okay, so what do you have today to share about the book? What is it about? And yeah, let's hear a small brief of the book, if at all. Okay, so I'll start with 3 characters जो आज के टाइम पे बहुत बड़े हैं. Like the first character is Morris Chang, who is the founder of TSMC, जिसके लिए चाइना आजकल अटैक कर रहा है, जिस इंडस्ट्री को एक्वायर करने के लिए, ताइवान सेमीकंडक्टर चिप. And he's the founder of that Taiwan Semiconductor Microchip. microchip. Sorry. And then comes Andy Grove, who was the former president and CEO of Intel. Then comes the third person, who was one of the who is one of the major character in this chip war. His name is Akio Morita. He is the co-founder of Sony. तो बेसिकली एक शॉर्ट स्टोरी है इन तीनों का. आई जस्ट गो थ्रू दैट. सो फर्स्ट कम्स एंडी ग्रोव. एंडी ग्रोव का ये था, ही वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन बुडापेस्ट. एंड वहाँ पे हंगरी की जो राइटिस्ट गवर्नमेंट थे, दे ट्रीटेड द ज्यूज़ लाइक सेकेंड क्लास सिटीजन्स, बेसिकली ग्रोव्स. तो वहाँ पे उनका ट्रीटमेंट बेसिकली इतना अच्छा नहीं होता था. वहाँ पे भी मतलब वॉर होते थे, गन फायर्स एंड ऑल दोज थिंग्स. तो वहाँ पे जितने भी बच्चे थे, एंडी ग्रोव वाज वन ऑफ देम, हु वाज अ किड हु वाज इन हिज टीनेज बेसिकली. तो वो भी ये वॉर देखा हुआ, उसने देखा कि एयरप्लेन्स उड़ रहे हैं, टैंक्स आ रही है, एम्यूनेशंस हो रहे हैं. तो what happened is he realized at a very early age कि during the war he noticed that ये जो एम्यूनेशंस है, जो एयरप्लेन्स प्रोडक्शंस है, जो आर्टिलरीज के जो प्रोडक्शंस है, इन सब का प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा है. एंड the country is not limited to that. The military is still looking for a new technology to overcome the other side. मतलब उनको dominate कर सके.
तो एंडी ग्रोव उस टाइम पे मतलब उस टाइम पे हिटलर ने भी इन्वेड कर लिया था हंगरी पे, तो वो आधा टाइम भागता रहा इधर से उधर, फ्ली करता रहा एक जगह से दूसरी जगह। फिर फाइनली एक जगह पे आके उसको पता चला कि गवर्नमेंट, many governments designed a research lab in respective places, and in those labs research were done like नेक्स्ट टेक्नोलॉजी क्या हो सकता है, नेक्स्ट चीज़ ऐसा क्या हो सकता है जो उस कंट्री को एक अपर हैंड दे दे। एंड वर्ल्ड के दूसरे एंड पे हमारे को फाउंडर थे TSMC के, मॉरिस चैंग। तो उनका भी यही था, वो भी चाइना जो था वहाँ पे चाइना और जापानीज़ वॉर हो रहा था, तो उस टाइम पे ये भी फंस गए थे उस वॉर में। तो ही वॉज ऑल्सो फ्लीइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर थ्रू आउट हिज टीनेज। एंड वर्ल्ड वॉर 2 के बाद उनको भी एक टाइम मिला जहाँ पे वो सोच सके कि मतलब आगे क्या कर सकते हैं, मतलब what he can do for the country basically. And he realized that technology will play an important role for the entire world. तो वो उसके ऊपर थोड़ा अपना टाइम बिताने लगे कि क्या कर सकते हैं, आगे क्या हो सकता है। एंड इन दोनों के बीच में एक मेन कैरेक्टर है जो है को फाउंडर ऑफ सोनी, आकियो मोरिटा। ही वॉज इन हिज अर्ली 20s। एंड उनको वो मतलब वर्ल्ड वॉर 2 में ही वॉज डिप्लॉयड इन अ नेवल इंजीनियरिंग लैब, जहाँ पे वो कोऑर्डिनेशंस एट ये जो लॉन्गिट्यूड्स लैटिट्यूड्स जैसे एयरप्लेन्स में होते हैं वैसे ये कोऑर्डिनेशन सिस्टम्स में वर्क करते थे। एंड ही यूज्ड टू हेल्प द नेवल टीम। तो देयर ही रियलाइज्ड दैट जब हिरोशिमा नागासाकी में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, एटॉमिक बॉम्ब जब ड्रॉप हुए, देन ही रियलाइज कि कोल एंड स्टील से कहीं गुना एडवांस है US। एंड ही थॉट कि अभी हमको दूसरे टेक्नोलॉजीज गन्स और टैंक से कुछ नहीं होने वाला। तो ही स्टार्टेड डेडिकेटिंग हिज टाइम ऑन रिसर्चिंग ऑन मिसाइल्स, रेडार्स, like detecting missiles from a very far distance। एंड उनकी क्यूरियोसिटी बढ़ती गई एक स्पेसिफिक मिसाइल पे जो होती है हीट सीकिंग मिसाइल आज के टाइम पे जो हम बोलते हैं, तो उनके ऊपर डेवलप करना शुरू किया। तो ये इन तीनों की कहानी है। एंड जब ये वर्ल्ड वॉर 2 एंड हुआ तो ये तीनों ने अपना टाइम डेडिकेट किया अपने न्यू टेक्नोलॉजीज़ को फिगर आउट करने में, रिसर्च करने में, जो आइडियाज़ उनको आते थे उसके बारे में जानने के लिए, उसको कैसे डेवलप कर सकते हैं, एक प्रोटोटाइप कैसे बन सकता है। बट जो वेस्ट में जब क्या हो रहा था, वेस्ट में उस टाइम पे ग्रेट डिप्रेशन वॉर आ गया था, नॉट वॉर मतलब ग्रेट डिप्रेशन आ गया था, एक टाइम आ गया था। तो वहाँ पे लोगों ने फिगर आउट किया कि ह्यूमन कैलकुलेशंस, जो कैलकुलेटर्स होते हैं उसका बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, इम्पॉर्टेंस उनको पता चला। जैसे एयरप्लेन में जा रहे हैं तो मतलब पायलट्स को खुद गेस करना पड़ता था कि कितने एल्टीट्यूड में अगर हम बॉम्ब ड्रॉप करेंगे तो टारगेट को हिट करेगा। तो उस टाइम पे ग्रेट डिप्रेशन के टाइम पे किसी के पास जॉब्स नहीं थे, तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम अपने अमेरिकन लोगों को ये सब चीज़ों में काम लगवा देते हैं, एम्प्लॉय करते हैं कि कुछ ऐसा एक साइंटिफिक कैलकुलेशन बनाओ जिससे कि हम एक्यूरेटली टारगेट के ऊपर अगर लॉक किया जाए तो उतना डिस्टेंस जाए, वो टारगेट पे हिट हो, वैसा टाइप। तो उसके ऊपर डेवलप करना शुरू किया। एंड देन पहला कंप्यूटर आया, मैकेनिकल कंप्यूटर जो हम बोलते हैं ना, वैक्यूम ट्यूब से आना शुरू हुआ। वहाँ से उनने टेस्ट किया अपने एयरप्लेन्स के साथ, तो उनको पता चला कि पायलट के गेस वर्क से ज़्यादा ये जो उन लोगों ने जो मैकेनिकल कंप्यूटर डिज़ाइन किया है उसकी एक्यूरेसी ज़्यादा थी। तो पीपल स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट मैकेनिकल कंप्यूटर, उसको और कैसे रिफाइन किया जाए उसके ऊपर काम करना शुरू किया। एंड देन वैक्यूम ट्यूब्स उनको मिला। वैक्यूम ट्यूब्स में भी उनको अच्छा एस्टिमेशन मिल रहा था, बट वो प्रॉब्लम ये हो रहा था कि इट वाज अ बिग कंप्यूटर। और वैक्यूम ट्यूब्स का ये है कि वो बहुत कम्बरसम है और बहुत, इट्स नॉट टू ईजी टू यूज़। एंड उसने बहुत सारी प्रॉब्लम्स हटाई थी,
बट उसका ये था कि लॉन्ग रन के लिए इट वाज नॉट बेनिफिशियल। तो यूएस वहाँ पे बिजी हो गया कि हमको एक छोटा सा, एक स्मॉल, फास्ट, एफिशिएंट कुछ टेक्नोलॉजी चाहिए जो इजी टू यूज़ हो, एफिशिएंट हो, कन्वीनियंट हो। तो यूएस पूरा वहाँ पे बिजी हो गया, मतलब वेस्टर्न कंट्रीज़ पूरा वहाँ पे बिजी हो गए ये टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में। एंड एट द सेम टाइम ये तीनों अपना अपना टेक्नोलॉजिकल रिसर्च कर रहे थे, डेवलप कर रहे थे। सो ये एक 3 कैरेक्टर्स है जिसके ऊपर, मतलब जिन इन तीनों ने एक एक कंपनीज खड़ा किया जो आज के टाइम पे हम जानते हैं, जो बिग कंपनीज हैं, जो एक मेजर रोल प्ले करती है टेक्नोलॉजी में। तो इनकी जर्नी के बारे में बताया गया है कि इन लोगों ने कैसे फाइंड किया एक प्रॉब्लम, उसका सल्यूशन कैसे निकाला, उसको कैसे एक ग्लोबल लेवल पे लेके गए, कैसे वो एक ड्राइवर बन गया इकोनॉमिक ग्रोथ का। ओके ओके, और कुछ तो आप बोलेंगे नहीं? ठीक है, तो तुमको क्या लगता है इसका इम्पोर्टेंस क्या है? एक माइक्रोचिप्स का। हाँ, how you look at it and how you think people should apply this knowledge in their life to help them. हम्म, मतलब इन तीनों लोगों से मेरे को एक चीज़ पता चला, इन तीनों कैरेक्टर्स से, कि दे वर डेस्परेट अबाउट समथिंग। ओके, वो डेस्परेट उनको, मतलब गवर्नमेंट के अंदर या जो चीज़ की कमी है डे टू डे बेसिस पे, जिसमें उसका इंट्रोडक्शन ज़रूरी है हमारे लाइफ में, वो चीज़ उन लोगों ने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया और उसका ट्रायल एंड एरर करते करते एक सोल्यूशन निकाला। तो आई वुड से कि इससे मेरे को ये सीखने को मिलता है कि जो भी हमारे आसपास हो रहा है, जो भी हमको प्रॉब्लम्स होती है ऑन अ पर्सनल लेवल, सपोज़ हमको लगता है कि मेरे साथ, मतलब मेरे को ये सब चीज़ अगर होता मेरे पास, जैसे टेक्नोलॉजिकल लेवल पे अगर मैं बात करूँ, अगर मैं कुछ इजी टू यूज़ वाला एक ऐप मेरे को अगर मिल जाता मेरे नीड के हिसाब से, तो आई वुड डेवलप दैट ऐप। मतलब मैं कैसे चाहूँगा कि वो कैसा हो मेरे लिए, और फिर उसको मैं एक एक रिसर्च करके देखूँगा कि इसका स्केलेबिलिटी कितना है, कितने लोगों के लिए बेनिफिशियल है, कितने लोग ये हेल्पफुल रहेगा। हम्म, Okay. हम्म, तो हम इसी बात पे कुछ आगे बात करें इसके बारे में, कि हम इसको यहीं पे ख़त्म करें एपिसोड को? अभी के वेल लिए इतना ही। कंटिन्यू, अभी के लिए इतना ही। ओके देन, सी यू। तो हम इसी बात पे कुछ आगे बात करें इसके बारे में, कि हम इसको यहीं पे ख़त्म करें एपिसोड को? अभी के वेल लिए इतना ही। कंटिन्यू, अभी के लिए इतना ही। ओके देन, सी यू।